option if it asks you. So let us start with this again. So in this blank user components, you could not find these two libraries over here. So right click on this and select new library. So in new library, you have to create a library name of your own. So let me write it as your library instead of my library, because I have created one own library of mine. So I am writing you here as your library. So this library is created in the folder user components, and then select OK. So as you select here your library, एक folder create हो जाएगा, and then you have to save this before you proceed to create some component. So save here, and the library name should be what you have written here. So it is your library. So I wrote here your library, and then save it. So when you save this, you can create n number of components into this single library. So let us start with a new component. In the name, write the component you want to create. So I am creating ESP12F today. So let me write it as ESP12F. So ESP12F यहाँ पे लिख लिया है, and then reference जैसा आप कुछ भी दे सकते हैं, reference design. So let me write it as Wi-Fi. तो जब आप इसे सिमेटिक में कॉल करेंगे तो ये Wi-Fi 1 Wi-Fi 2 नाम से कॉल होगा, और इस प्रकार से मैंने इसका नाम वाईफाई दे दिया है। और आप देखिए जहाँ पे आपने यहाँ कंपोनेंट नेम जैसे ही लिखा होगा, सो यहाँ पर कंपोनेंट टूल्स में यू कुड फाइंड द नेम इट एज ESP12F. सो लेट अस start designing this. So once again I come back to this view. So यहाँ पे आप देख सकते हैं we are having 8 vertical pins on both the side, on the left and right. So 8 हमें यहाँ पे use करने हैं, and the bottom we have 6 pins. So usually we do not use these pins. So in pins को हम create नहीं करेंगे. We will create 8 pins on the left and 8 pins on the right. So total 16 pins will be there on the ESP module that we are going to create. So let us start with this. So from here on the top you could find the pin line, and then pin rectangle, and then pin circle. So you want to create 8 and 8 pins. So let me take this as pin line. So select pin line and start drawing pins. So from the top to the bottom I am creating 8 pins. So जैसे जैसे आप pin select करेंगे, the count is shown at the cursor. So I can see that 8 pins are created. So click on this. So 8 pin हमारी create हो चुकी है इस side में, and then किसी एक सर्टेन ऑर्डर में आपको याद रखना होगा कि पिंस को पुट अप करना है. तो यहाँ से 1 अगर आपने गिना है, सो देन यहाँ बॉटम से फिर आप 9, 10, 11 बॉटम टू टॉप गिनेंगे, 9 से लेके 16 तक की जो हमारी पिंस है. सो लेट अस कम बैक टू दिस व्यू, और यहाँ पे फिर अगेन हम पिन लाइन को सिलेक्ट करते हैं, और पिन लाइन में यहाँ पर इस बार बॉटम से हम सिलेक्ट करेंगे पिंस को, एंड देन प्रेस. सो दीज आर 9 पिंस. एस्केप करके आप इसे रिमूव कर सकते हैं. किसी को रिमूव करना है तो सिलेक्ट दैट सिंगल पिन एंड डिलीट. सो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं. सो लेट अस जूम इट सो दैट यू कुड हैव अ क्लियर व्यू. इस प्रकार के हमने पिन्स रख दी हैं, और इस पे जैसे ही आप जाएंगे कर्सर लेके, तो यू विल फाइंड दैट इनके नेम्स नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे. सो दिस इज पिन 1, and at the bottom you have pin 8, then this is pin 9, and at this corner you have pin 16. So 1 2 3 4 and then 8 9 10 11 इस ऑर्डर में हमने इसे फिक्स कर लिया है. So यहाँ पे हम आते हैं रेक्टेंगल पे, and let us take a rectangle over here. So इस प्रकार से हमने एक रेक्टेंगल लेके इस पे यहाँ रख दिया है. So this is my complete ESP now. और इसमें अगर कुछ टेक्स्ट में आपको नाम लिखना है, सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं. सो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ले लिया है मैंने, और लेट मी राइट अ नेम ESP12F. सो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, देन प्रेस एस्केप. सो इस प्रकार से कंपोनेंट हमारा बन चुका है ESP12F. और अगर आपको ओरिजिन डिस्प्लेस करना है, सो गो टू व्यू और डिफाइन ओरिजिन करके बाय माउस पॉइंटर आप ओरिजिन को अलग हटा सकते हैं. ठीक है, अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा है ओरिजिन से. सो नाउ ओरिजिन हमने डिस्प्लेस कर लिया, और ये हमारा कंपोनेंट डिजाइन हो चुका है. नाउ लेट अस नेम द डिफरेंट पिन्स. अब आप यहाँ पे देखिए कि मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया है और पिन लगा दी है, लेकिन मैंने कहीं भी डायमेंशंस को फॉलो नहीं किया है.
So while designing a component, it is not necessary to follow any kind of dimension. आप अपने हिसाब से simply उसको रख सकते हैं, लेकिन बट व्हेन यू डिज़ाइन अ पैटर्न, वहाँ पे आपकी जो साइज है, जो डायमेंशन है, वो एग्जैक्टली मैच करने चाहिए कंपोनेंट के डायमेंशन से, क्योंकि उस पे आप लेआउट डिज़ाइन करते हैं, उस पैटर्न की हेल्प से आप लेआउट डिज़ाइन करते हैं, देन इट इज़ प्रिंटेड ऑन योर पीसीबी. सो वहाँ पर ये बहुत नेसेसरी है. बट कंपोनेंट डिज़ाइन जहाँ पे आप सिंबल बना रहे हैं, वहाँ पे कोई पैटर्न स्पेसिफिक बनाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता, कोई डायमेंशंस बनाना ज़रूरी नहीं होते. सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस. सो ओपन दिस पिन मैनेजर, और यहाँ पे सारे पिन के आपको नाम लिखने होंगे. So from here, let me make some listings. So this is pin number 1, that is reset, and the last pin number 8 is VCC. So let me write some of the pins here. So number 1 को आपने select किया है, the name is reset. So RST as जो वहाँ पे लिखा है वही मैंने लिख दिया है. So reset pin number 1 है ये. I want to show the name of this component. If you want to increase the length of the pin, आप यहाँ पे 2, 3 as you wish you can increase. So let me show you this कि क्या हुआ इसका impact. So once again we'll try to do this. Go again to this pin manager. I'll rename this as reset, और instead of 0.15 I am putting 0.2. ठीक है, पिछली बार गलती में 1 लिख दिया था, 2 लिख दिया था. Instead of 0.2 I have written 2. So यहाँ पे आप show name करेंगे and then you press OK. So you will find that कि इसकी थोड़ी सी साइज दूसरों से ज़्यादा है. So if you want to increase this, you can increase it, else as it is. और यहाँ पर reset हमने लिख दिया है. Similarly, you could name some other pins. So pin number 8 is VCC. So let me write it as VCC. So VCC 3.3 volt रहता है इसमें. So you must remember this. Okay, and then let us add some more pins. So this is ground, and on the top we have TXD and RXD. So ground is pin number 9. This is ground, and 15 is RXD. So show name. 16 is TXD. Again show name, and this ground maybe let us put show name, and then OK. So कुछ पिंस को मैंने लिस्ट किया है. You have to list all, आपको सारी पिंस पे ही लिस्टिंग करनी है, so that you cannot get confused while connecting. So सारी पिंस को इस प्रकार करने के बाद you could update your component while saving. तो इसे सेव कर दिया है और ये हमारा component तैयार हो गया है. And then now let us move towards the design of the pattern. So from the open DipTrace launcher, let me move towards this pattern editor. So till the pattern opens, let us see this diagram once again. So I'll move to the other diagram. So from here you could see that the dimension, the most important thing here is to be noticed is the difference between the pins. So 2 pins have a pitch size of 2 mm. दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 mm आपको मेंटेन करना है. जनरली जो कंपोनेंट्स हम लोग यूज करते हैं उसमें 2 हेडर्स या 2 पिंस के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 2.54 mm होता है, दैट इज 0.1 इंच. बट यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा कम है. सो स्पेसिफिकली इस कंपोनेंट को डिज़ाइन करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आपको 2 mm का पिच साइज डिस्टेंस रखना है. और जो यहाँ पर पैड है वो भी रेक्टेंगुलर है, सो रेक्टेंगुलर पैड की थिकनेस को भी ध्यान रखना है. सो इट इज़ 1 mm. एंड अगेन आप इसको देखें कि इसकी बाउंड्री जो है होती है हमारे कंपोनेंट की, और जो हमारे हेडर्स होते हैं वो बिल्कुल एक ही पॉइंट पे होते हैं. सो इसकी बॉर्डर को कट करके, इसकी बॉर्डर कट आती है, आप देखेंगे जब इस कंपोनेंट को, सो बॉर्डर थोड़ी सी कॉर्नर से कट होती है, तो और कॉर्नर पे ही ये कंपोनेंट के हेडर्स शोल्डर हो जाते हैं. तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है. तो 16 mm की दूरी पे हमें पैड्स को पुटअप करना है, और इसमें 2 आप देख सकते हैं कि 2 पैरेलल आपको पैड लगाने के ऑप्शंस हैं.
तो हम केवल ये आउटर वाला जो है इसका अभी यूज़ करेंगे, क्योंकि वी आर यूजिंग द थ्रू होल कंपोनेंट डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो ये बाहर वाले को हम यूज़ कर रहे हैं। तो 16 mm के डिस्टेंस में हम पैड को पुटअप करेंगे। सो लेट अस कम टू दिस पैटर्न एडिटर नाउ। जैसे आपने लाइब्रेरी में जाके अपना फोल्डर बनाया था, सिमिलरली यू हैव टू क्रिएट योर ओन फोल्डर हियर। सो पिछली बार यूज़र कंपोनेंट में बनाया था, इस बार आपको यूज़र पैटर्न में जाना है। सो यूज़र पैटर्न में जाके इस ऊपर वाली प्लेस पे जहाँ पे हमें लाइब्रेरी क्रिएट करनी है, गो टू दिस न्यू लाइब्रेरी, और यहाँ पर जो लाइब्रेरी नेम आपने वहाँ रखा था, आई होप यू शुड राइट इट सेम हियर। अलग भी रखें तो कोई डिफरेंस नहीं आता, बट सेम रखेंगे तो आसान रहेगा याद रखने के लिए। सो मैंने यहाँ योर लाइब्रेरी लिख लिया है। तो योर लाइब्रेरी में अभी मेरा कोई कंपोनेंट नहीं है, तो अनटाइटल लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास। देन लेट अस नेम इट एज ESP12F। जो हमारा पहला कंपोनेंट हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो ESP12F है। सो लेट अस सेव इट बिफोर वी डिज़ाइन एनीथिंग। सो जैसे आप सेव करेंगे, तो यहाँ पर आपको योर लाइब्रेरी नाम से सेव कर देना ऐसे ही। तो यहाँ पे .lib एक्सटेंशन के साथ में ये सेव होगा। एंड देन रेफरेंस डेस्क जो हमने वहाँ रखा था, लेट अस राइट इट सेम हियर, वाईफाई। एंड नाउ द मोस्ट टिपिकल टास्क, यू हैव टू डिज़ाइन द पैटर्न। तो सबसे पहले हमने देखा कि सारे जो रीडिंग्स है हमारे वो mm में थे, तो इसलिए यहाँ पे जाके यूनिट्स को आप चेंज करें, यू कन्वर्ट इट टू mm। अगर मिल में है तो mm कर लें, इंच में है तो mm कर लें। एंड देन मूव टू दिस ग्रिड साइज, और ग्रिड साइज में जाके कस्टम में जाके हम इसे 2 mm कर लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमारा 2 mm का है, तो इसलिए हम 2 mm यहाँ पे कर लेते हैं। एंड देन वी मूव टू व्यू, और आइडेंटिकल विथ एक्स हमने कर लिया है, तो यानी ये ग्रिड का जो डिस्टेंस है वो 2 mm बाय 2 mm का हो चुका है। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट कीपिंग पैड्स। सो प्लेस पैड के ऑप्शन की हेल्प से आप इसे प्लेस कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने इसे प्लेस किया है 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड देन लेट अस चेक वेदर द डिस्टेंस बिटवीन द पैड्स इज 2 mm और नॉट। तो इसे थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं यूजिंग दिस ऑप्शन, एंड लेट अस सी वेदर द डिस्टेंस इज 2 mm और नॉट। सो स्केल का यूज़ करके हमने इसे सेट किया। सो वी फाइंड दैट कि ये प्रॉपर नहीं हो पाया है, इट इज़ 2.54। सो लेट अस पुट द पैड्स इंडिविजुअली। आप ध्यान दें इसे कि इसकी कुछ सेटिंग है दैट वी हैव टू सी लेटर। सो फॉर नाउ let us delete these pads because the distance between the pins are 2.54 mm. So I am deleting this, and instead यहाँ पे 2 mm सेट करने के बाद आप सिंगल पैड को रखना शुरू करें। सो पहला पैड मैंने इस ग्रिड पे पुटअप कर दिया है, ग्रिड पे अलाइन रहेगा ये। सो ग्रिड पे आप पैड को पुटअप कर सकते हैं। सो यहाँ पर पैड के डिमेंशंस को भी हम चेंज कर लेते हैं बिफोर वी पुट सम मोर पैड्स। सो यहाँ पर इस ऑप्शन पे जाना है, स्टैंडर्ड पैड प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर जाके आपको टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। सो यहाँ से लेना है रेक्ट राउंड, क्योंकि रेक्टेंगुलर पैड के बीच में हम राउंड ड्रिलिंग करेंगे। सो रेक्ट राउंड ले लीजिए, थ्रू होल कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर है। एंड देन इट इज़ 1.53। लेट अस सी व्हाट डज इट क्रिएट्स। सो ये पैड कुछ इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल आ गए हैं। सो अगेन लेट अस मूव टू दिस एंड एक्सचेंज the pad type. So 1.5 here and 3 on the top. इस प्रकार से हमने एक्सचेंज किया है इसे, so that it is rotated। और इस प्रकार के पैड्स अब आपको रिक्वायर्ड है। तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम एक बार मेजर कर लेते हैं, इज इट ओके और नॉट। सो यहाँ पे प्लेस किया हमने और यहाँ पे किया, एंड देन नाउ यू कैन सी दैट इट इज 2 mm। सो इट इज एज पर द रिक्वायरमेंट। तो अब इसे आगे और बहुत सारे जो पैड्स आपको क्रिएट करने, यू कैन डू दैट। सो लेट मी पुट द पैड्स 1 by 1। सो 3 एंड देन एक्सक्यूज मी सर। हाँ, यस। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा इसको। व्हाट यू वांट टू नो? इंडिविजुअल पैड रखने के लिए इंडिविजुअल पैड क्यों रखा? क्योंकि पहले जब हमने ये लाइन ली थी प्लेस पैड लाइन की हेल्प से, वो जानना है। ओके, तो लेट मी एस्केप दिस वंस अगेन, एंड मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इसे करने से पहले आपको सबसे पहले व्यू में जाना है और यूनिट्स को चेंज करना है, सो डैट इट इज़ ऑन इन mm। एंड देन यहाँ पर ग्रिड साइज में जाके यू सिलेक्ट दिस कस्टम, और कस्टम से आप इसे 2 mm कर ले, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो डॉट्स हैं
वो 2 mm की दूरी पे अब रहेंगे, सो इसलिए हमने 2 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। एंड देन अगेन यू गो टू व्यू एंड देन वाई ग्रिड साइज को भी आप आइडेंटिकल विथ एक्स कर लीजिए। आइडेंटिकल विथ एक्स मतलब वहाँ 2 रखा है तो यहाँ पे भी वर्टिकल भी जो डॉट्स हैं वो 2 mm की दूरी पर ही रहेंगे। तो इसे आइडेंटिकल रखने के बाद then you could decide the pad type। सो पैड टाइप यहाँ से हमने रेक्टेंगुलर लिया है क्योंकि हम इसमें अगर देखें जो हमारा डायग्राम था तो ये रेक्टेंगुलर है और इसमें जो होल्स हैं वो हमारे राउंड है, तो इसलिए रेक्ट राउंड हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। सो रेक्ट राउंड ले लेते हैं। सो ये रेक्ट राउंड आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज रेक्ट राउंड थ्रू होल और रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल एंड देन इसकी जो साइज है ये आप 1.5 और 3 इस प्रकार से रख लें अभी। और ये जो है जो ड्रिलिंग बिट आप यूज़ करते हैं वो 0.9 mm वाली यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास कम वाली हो 0.8 वाली अवेलेबल हो आपकी ड्रिल बिट में तो आप वो वाली यूज़ कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। तो आप परचेस करते वक्त ये ध्यान रखें। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स में हम 0.9 यूज़ कर रहे हैं तो 0.9 लिया है एंड देन ओके। अब जब आप पैड को यहाँ से लेंगे सो इसका नंबर 1 होगा और इससे ये जो आपके ग्रिड के जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं उसी पे रखते चले जाएं। सो यू कैन फाइंड दैट कि ये हमने प्लेस अप किया था लेकिन ये हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल आ गए हैं। सो देन अगेन यू गो टू स्टार्ट पैड प्रॉपर्टीज, इसे चेंज कर ले, यू पुट 3 ईयर एंड 1.5 रोटेट कर दिया आपने इसको एक्चुअली। तो इस प्रकार से ये आ गए। इसके बाद आपको जितने पैड्स रखने हैं, ये 1 था, ये 2, देन यू पुट 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, उसके बाद इसके पैरेलल में ही हम रख लेते हैं, अभी बाद में बीच का डिस्टेंस मैनेज करेंगे। सो यहाँ पे रखा 9 10 11 12 13 14 15 एंड देन 16। तो जैसे ही आप इस पैड को प्लेस करते हैं तो वो अपने आप ग्रिड से अलाइन हो जाता है, वो यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं आएगा, ग्रिड से अलाइन होके ही आएगा क्योंकि हमने ग्रिड को सेट कर दिया। तो नाउ लेट अस मैनेज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। सो यहाँ से स्केल को लिया, सिलेक्ट किया और हम जानते हैं एज पर द डायग्राम कि इसके बीच का डिस्टेंस हमारा 16 mm होना चाहिए। सो यहाँ पे स्केल पुटअप की हमने, हॉरिजॉन्टल स्केल को पुटअप किया है एंड वी फाइंड दैट कि ये 8 mm आ रहा है। सो इट मीन्स दैट वी वांट टू शिफ्ट इट। तो यहाँ से हमने एस्केप की हेल्प से आप किसी कमांड को एग्जिट कर सकते हैं। अब नाउ मैंने फिर सिलेक्ट किया है 14 16, नाउ दिस इज ओके, देन क्लिक। सो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये 16 mm की दूरी पे हमने इसे प्लेस अप कर दिया है। ओके, सो बॉटम की हम लोग पिंस नहीं ले रहे हैं और अब हमें इनके नंबर्स को चेक करना है वेदर ये ऑर्डर में है या नहीं। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 ऐसा दिया है वर्टिकली डाउन टू 8 एंड देन यहाँ बॉटम से हम चल रहे हैं 9 to 16। सो लेट अस सी जो पिन नंबर्स हमने दिए हैं वो सही है या नहीं। सो आप जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो लिखा हुआ है पैड 1 देन 2 देन 7 देन 8 एंड सो ऑन। आप नंबर को नोटिस करें, पैड 9 10 एंड दिस इज 15 एंड 16। ठीक है, इस प्रकार से हमें मैनेज करके प्रॉपर्ली करना है। अगर ऑर्डर बिगड़ रहा है तो आप राइट क्लिक करके किसी भी नंबर का अगर ऑर्डर बिगड़ रहा है तो आप उस पैड के नंबर पर जाके उस पैड के नंबर को बदल सकते हैं। सो गो टू दिस, राइट क्लिक, थोड़ा सिस्टम हैंग हो रहा है, आई होप। सो ये पैड नंबर जो है अगर आपको बदलना है, सो जैसे राइट क्लिक करके, वंस अगेन एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करें, यू क्लिक ऑन दिस पैड नंबर और जो भी नंबर है आपका इन ऑर्डर में आप पुट करते हुए सारे के पैड नंबर्स अलाइन कर सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद लेट अस सी द डायग्राम वंस अगेन और यहाँ पे देखें कि आपको ये ब्लू कलर का जो कंपोनेंट की साइज है वो टोटली आपको बनानी पड़ेगी। सो इट इज 24 क्रॉस 16 mm का हमारा साइज है ये ब्लू कलर के रीजन का। सो लेट अस ड्रॉ दिस 24 क्रॉस 16 mm। सो वापस आते हैं कंपोनेंट एडिटर पे और थोड़ा सा इसे मैं जूम आउट कर लेता हूँ। So now using this empty box rectangle जो ऊपर आपको दिख रहे हैं डिफरेंट
शेप्स, उसमें से आप इसे सिलेक्ट करें एंड देन लेट मी पुट इट एज 4 mm दिख रहा है यहाँ पर 4 mm इज, सो दिस इज 16 mm क्रॉस 24 mm। ये 24 आपको यहाँ दिख रहा है साइड में, आई होप यू कैन सी। सो दिस इज 24 mm क्रॉस 16 mm। इसको इस प्रकार से करके हमने पुटअप कर दिया। तो एज पर द डायग्राम, ये जो हमारे पैड्स हैं उसके जस्ट सेंटर से ही चल रहा है ये पॉइंट, तो 16 पैड्स के सेंटर से है, इसलिए वहाँ पे भी ऐसा रखा है, और यहाँ हाइट 24। नाउ किसी और डायग्राम से मैं और थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ इसके डायग्राम के। सो फ्रॉम हियर यू कुड सी दैट ये जो हमारी बाउंड्री है, जो हमारी लास्ट बाउंड्री है ब्लू कलर के रीजन की, और जो पैड के बीच का डिस्टेंस है वो 1.5 mm है। सो यहाँ पे हम देखते हैं क्या ऐसा यहाँ पर 1.5 mm है क्या। सो स्केल की हेल्प से हम इसे देखते हैं। सो लेट मी जूम इट समवॉट टू हैव अ क्लियर व्यू ऑन योर स्क्रीन, और स्केल ले लेते हैं। सो with the help of the scale from the pad center to the figure center, you can find that this is 2 mm. I hope it is visible on the screen. So ये जो 2 mm है ये 2 mm आ रहा है। So जो हमारे फिगर के हिसाब से हम देखें, so it is 1.5 mm, so we have to correct it. In order to do this, you have to change the scale once again. So go to view and let us reduce the resolution. So from grid size, custom, and I am reducing the grid size to 0.5 mm. So this is 0.5 mm, और y को हमने identical to x रखा है, so इसलिए वहाँ पे ये setting अपने आप हो गई है। And then you can use escape every time you want to exit from a particular command. So अभी grid size हमारी बदल चुकी है, और अब हमें अगर shift करना है 1.5 mm पे, मतलब एक डॉट हमें ऊपर उठना है। सो लेट अस सिलेक्ट दिस एंड मूव इट, एक ग्रिड की एक साइज को हमने मूव किया है। सो नाउ यू कुड सी दैट कि ये हमारा जो साइज है ये 1.5 mm हो चुका है। ये 1.5 दिखा रहा है इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। सो टॉप पे देख लें, जो हमारा ये डायग्राम है थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमने शिफ्ट कर दिया। सो यू कैन नाउ मेजर दी हाइट ऑल्सो। सो ये हाइट हम यहाँ से देख लेते हैं, इस पॉइंट से हाइट मेजर करनी है हमें इस आखिरी पॉइंट तक। सो इट इज़ 24 mm, और जो हॉरिजॉन्टल हाइट थी हमारी वो 16 mm है, एज पर द सिलेक्शन वी हैव डन अर्लियर। सो दिस इज 16 mm, read on the screen 16 mm, and this 24 mm as per the diagram that we have got from the dimensional diagram we have gone from the internet. So this is 16 mm and 24 mm, और ये भी हमने 1.5 ले ली। So this is the major portion that you must design in the layout. इसके अलावा और कुछ चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो वंस आपने ये डिज़ाइन कर लिया है तो आप जो मार्किंग्स हैं उसे रिमूव कर सकते हैं। सो इसे पहले सेव कर लेते हैं थोड़ा सा, एंड देन लेट अस रिमूव दीज मार्किंग्स। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये आपके नहीं तो पैटर्न में देखने को मिलेगी आपको, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ चेकिंग के लिए थी। तो इसको मैंने इस प्रकार से रिमूव कर दिया, एंड ये कंपोनेंट कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है फ्रॉम द डायग्राम। यू कुड सी इसी प्रकार से हमें कुछ बनाना था, और ये हमने यहाँ पे बना लिया। देन यू हैव डन दिस, सेव इट वंस अगेन एंड कम बैक टू द कंपोनेंट एडिटर। यहाँ पे हमने कंपोनेंट बनाया था, इस कंपोनेंट में एक खास काम बाकी है। यू हैव टू अटैच द कंपोनेंट विथ योर पैटर्न। So let us move again to this component in the menu bar and then attach pattern. So let us attach the pattern now. ये component हमें यहाँ दिख रहा है, pattern अभी दिख नहीं रहा है। Pattern, we have kept our pattern in the user patterns. So let us move to user patterns and then my library, your library. So ESP12F. तो ये इस प्रकार से दिख रहे हैं कनेक्शन मुझे एस्टेब्लिश हो गए हैं अपने आप। आपकी पिन और पैड दोनों के बीच में एक कनेक्शन आ गया है। सो यू कैन सी हियर, पहली पिन और पहला पैड, देन सेकंड पिन सेकंड पैड, थर्ड पिन थर्ड पैड। ये देखिए आप ऑटोमेटिकली उस पर लिखा हुआ आता है जब आप उस पर ब्राउज करते हैं, और कनेक्शन भी आपको देखने को मिल रहा है, दोनों तरफ रेड से ये बता रहा है। सो ये आपने प्रॉपरली कनेक्ट कर लिया है। कभी भी ये करने के बाद आप इंडिविजुअली पिन को ज़रूर चेक करें कि आपने ऊपर नीचे तो कहीं कनेक्ट नहीं कर दिया है, क्योंकि जब आप पिन्स को सिलेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि वो ऊपर नीचे रखा गई हो, इस वजह से ये दिक्कत हो सकती है। सो वी हैव डन दिस। देन
If you have done this, press OK and remember to save. अगर आपने ऐसा किया और सेव नहीं किया तो इसका मतलब वो अटैच नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है सेव करने का. Then let us see whether the component that we have made is really working or not. So let us open a schematic and we'll take browse this as a component there to see whether our design is working or not. So here in user components I can see my library in the schematics. So ये blank schematic में देखते हैं कि ESP12F दिख रहा है या नहीं. So yes, this is visible now. और इसे एज अ कंपोनेंट अब आप ब्राउज करके आपके सिमेटिक में ले सकते हैं. तो नाउ लेट अस टेक दिस एज अ कंपोनेंट, और इसे मैंने यहाँ से एक कंपोनेंट सिलेक्ट कर लिया है. एंड देन लेट मी टेक वन अनदर कंपोनेंट एज वेल. सो आई एम सिलेक्टिंग आर्डिनो ऊनो, जो कि लाइब्रेरी के तौर पे यू कैन ऐड फ्रॉम गिटहब. आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द क्लासरूम. सो यहाँ से ऊनो भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है. सो ये ऊनो मेरे पास अवेलेबल है. सो ये ऊनो मैंने ले लिया है. एंड देन किसी GPIO पिन से अगर हम इसे कनेक्ट करना चाहें किसी डिजिटल पिन को, सो देन वी कैन कनेक्ट. सो लेट अस सपोज दैट कि मैं IO5 को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ किसी डिजिटल पिन से. सो सिमेटिक में आते हैं हम लोग वापस और डिजिटल पिन से IO5 को कनेक्ट करेंगे. तो IO5 एक बार और देख लें हम लोग. इट इज़ जस्ट बिलो द RxD. सो यहाँ पर RxD के नीचे IO5 है. So let me connect it simply using this. तो D2 से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है using this. So this is just a sample what I am trying to do, and let us see whether this connection is proper or not. So let us move to files and then convert to PCB. सो बिना किसी एरर के हम यूज सिमेटिक रूल्स तक आ गए. इसका मतलब हमारा डिज़ाइन ओके है. एंड देन यू कैन सी कि जो वाईफाई मॉड्यूल है वो प्रॉपरली जहाँ पे हमें कनेक्ट करना था आर्डिनो बोर्ड के ऊपर हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं. सो आर्डिनो के साथ में हमारा ये वाईफाई अटैच होके आ गया है. एंड जो लोग शील्ड बना रहे हैं आर्डिनो के ऊपर, सो उनके लिए एज अ कंपोनेंट यहाँ पे फुटप्रिंट के साथ अटैच हो गया है. सो इतनी स्पेस इस बोर्ड के ऊपर होती है शील्ड में कि आप जस्ट बोर्ड के ऊपर इसे प्लेस कर सकते हैं. सो अप्रोप्रिएट डायरेक्शन के साथ में इसे हम बोर्ड के सेंटर में ऊपर, अगर आप IoT बेस्ड कोई डिवाइस बना रहे हैं तो इसको इसके ऊपर आप रख सकते हैं. एंड यू कैन मेक योर शील्ड इन द सेम मैनर. सो ये टॉप व्यू है. और जब आप बॉटम व्यू में जाएंगे सो यू कैन अटैच द पैटर्न्स एंड देन यू कैन क्रिएट योर लेआउट. So I hope at this end you are too much clear with how you can create some different symbols and patterns, and then later on how could you could use those patterns and components along with the Arduino footprints and so on. So I hope this is clear to everyone.